Am I audible, sir, and visible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, sir. So my today's topic will be aromaticity. So before that, we'll be having some little introduction about the aromaticity. What is aromaticity? Aromaticity is basically the property of cycloconjugated alkenes by which they enhance their stability by delocalization of the pi electron. So I can write down property of property of cycloconjugated alkenes in order to enhance their stability. By the delocalization of pi electrons. So this concept is basically where you'll be able to see there will be the occurrence of the delocalization of the pi electrons. So how to identify whether the given compound is aromatic, non-aromatic and anti-aromatic, that will be basically our today's topic. So we have some criteria first, criterion to identify, criterion for aromaticity. So we have to see the first some criterions. If the compound is following that criterion, then it will be aromatic. Number first criteria, that is the molecule should be cyclic. Molecule should be cyclic. Molecule should be cyclic, that the atoms should be forming a ring-like structure. It should form a ring. That means there should be connection like this between the atoms. Ring-like structure. That is a cyclic form. So it is necessary that if a molecule is aromatic, it should be cyclic. Second criterion, it should have conjugation. So what is this conjugation? Conjugation is basically the presence of the pi bond on alternate positions. Presence of pi bond on alternate positions. Alternate positions in a ring. Aliphatic compounds can also show this conjugation, but here we talk about the aromatic. That's why we are only discussing about the cyclic case. After that, how this conjugation is possible? If I have atom A and there is sigma bond and atom B and there is atom C, this case can show conjugation. That means A is sigma pi. Second case, if I have A atom that is cation and there is B and C double bond, this case can also go for the conjugation. Number third, if I have molecule like this, it is containing negative charge sigma B and C pi bond, it can also show the conjugation. Number third case, if I have A free radical and B, it can also show the conjugation. And one more case is here, case number 4. If I have an atom having the vacant orbital like boron, usually show this type of conjugation, B double bond C. So these are the cases where you can see that the particular molecule go for the conjugation. So these are the criteria. In the criterion second, we can see that A single bond, B pi bond, and all that. So number third, their compound should be planar. There should be planarity in the molecule. But if you have a planar, that basically the atoms which take part in the ring, the atoms which are participating in the ring should be sp2 hybrid. Atoms participating in the ring should be sp2 hybrid. So the case is possible when we have some 3 sigma and 0 lone pair. एक केस में ये बन सकता है sp2 के लिए, and second case it will be 2 sigma and 1 lp. So this is basically the condition यहाँ पे sp2 hybrid. That means ये condition यहाँ पे हर एक एटम को फॉलो करना पड़ेगा कि वहाँ पे 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर हो या 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो. ये क्राइटेरिया बनता है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है क्या वो प्लानर है कि नहीं है. उसके लिए जो भी एटम्स रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए. नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो उसके बाद हमें कंडीशन नंबर 4 पे जाना पड़ेगा. दैट इज Haeckel's rule. That is Haeckel's rule. So what is this Haeckel's rule? This is basically the 4n plus 2 pi electrons. n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है. अगर n का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं दैट मींस 0 plus 2 pi electrons.
अगर n का वैल्यू 0 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो दैट मींस इट विल बी 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, फॉर 1 और 2 प्लस दैट इज 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू इसी तरह हम 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 4 2 8 10 pi इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं n का, तो हमें यहाँ पे कलेक्शन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर ये फर्स्ट 3 कंडीशन फॉलो के बाद ये वाला कंडीशन सारे ऑप्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा। अगर ये पहले 3 कंडीशन फिल हो रही है, पर यहाँ पे और एक रूल है स्टार दैट इज 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, दैट मींस 4 1 और 4 दैट मींस 4, और सेकंड n का वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये बनेगा, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 8 आ जाएगा, दैट मींस ये 8 का मल्टीपल बनेगा। दैट मींस अगर 8 के मल्टीपल में आपको pi इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो उस केस पे हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एनी केस अगर पहले 3 केसेस में कोई भी केस मिस कर रहा है और जो है ओबे नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल, तो उस टाइम पे वो नॉन एरोमेटिक होगा। मतलब आइदर ऑफ द first 3 statements one is missing, that is not obeyed by the molecule, at on that case we call that the particular molecule will be aromatic, that means non aromatic। that means पहले 3 कंडीशन में से, that means ये वाले 3 कंडीशन जो हमने अभी यहाँ पे देख लिए है, फर्स्ट साइक्लिक भी नहीं कंजुगेशन, और थर्ड हमारे पास है प्लेनरिटी। इन तीनों में अगर एक भी मिस है तो वहीं से वो नॉन एरोमेटिक होगा, हमें आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल आप समझ सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे नीट जे पॉइंट व्यू जो प्रीवियस ईयर है वो भी मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, तो इसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देख लो, अगर हमारे पास सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे मैं शुरू करूँगा। अगर मेरे पास ये जो सिंपल सबको पता है हमारे पास ये बेंजीन C6H6, तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये साइक्लिक है, हाँ तो साइक्लिक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये ओपी कर रहा है। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे इसका जो यहाँ पे कंजुगेशन होना चाहिए, दैट मींस जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, तो एक छोड़ के एक, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है, इधर पे है इधर पे नहीं है, इधर पे है इधर पे नहीं है, इधर पे है इधर पे नहीं है, दैट मींस वन आफ्टर वन। तो यहाँ पे कंजुगेशन भी हमें मिला, कंजुगेशन भी यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम प्लेनरिटी में हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास हर कोई एटम रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे सम देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कितना तो पता है 1 2 3, तो सम यहाँ पे 3 है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे सिग्मा बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन हर एक एटम की यहाँ पे sp2 आ रहा है, दैट मींस ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास होगा ये प्लेनर होगा। उसके बाद हम हकल्स रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो यहाँ n का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा, 3 जैसे आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n का वैल्यू 3 कर दोगे, तो यहाँ पे बेसिकली या आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो, अगर इतना लंबा दिख जाएगा, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हमें यहाँ पे फास्ट, अगर आपको नीट जेईई में क्वेश्चन को फास्ट अटैम्प्ट करना है तो आप सीधे यहाँ पे लगा सकते हो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। 4 के मल्टीपल में आता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, पर ये देखो 6 जो है 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है, यही से हम यहाँ पे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं ये कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होगा। इसी तरह हमारे पास और एक भी कंपाउंड है, ऐसे करके देखो, ये मेरे पास एक दिया गया, इसके पास चार्ज नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे भी पूछा गया है कि क्या ये एरोमेटिक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड, यहाँ पे देखो साइक्लिक है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, ऑब्वियसली ये साइक्लिक है। उसके बाद यहाँ पे कंजुगेशन देखते हैं, देखो मैंने आप पहले ही बताया कि अगर हमारे पास नेगेटिव है, फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो ये कंडीशन कंजुगेशन में जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंजुगेशन कर रहा है, दैट मींस कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे चल रही है, ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन भी है। उसके बाद हम देख लीजिए कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये प्लानर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो सम तो 3 है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन इधर भी होगा इधर भी होगा, पर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव और हाइड्रोजन भी होगा। अब देखो यहाँ पे सम क्या होगा, 1 2 और एक हाइड्रोजन होगा 3। अब कोई बोलेगा कि ये नेगेटिव भी यहाँ पे, अब देखो जो नेगेटिव यहाँ पे, जो यहाँ पे नेगेटिव क्या है,
इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कंजुगेशन के अंदर, तो वो कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे चाहे लोन पेयर हो, चाहे ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है कंजुगेशन के अंदर, हम बिल्कुल भी इसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि लोन पेयर या जो होता है एक कंपाउंड के पास, वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, पर इस केस में नहीं कर रहा है अगर वो कंजुगेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 होगा, sp2 होगा, sp2 होगा। तो ये देखो यहाँ पे प्लेनर है, दैट मींस प्लेनर केस भी यहाँ पे ऑप्ट कर रहा है मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे सम देखते हैं। अब देखो जो लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन के अंदर, उसको हम काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रखना है। दैट मींस ये जो हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये अब काउंट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हुए। दैट मींस इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 आ गए। तो ये 4 के मल्टीपल में होगा, तो ये बेसिकली हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे जो नीट जेईई में पिछले साल आ ही चुके हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में। अब देखो हमारे पास एक कंपाउंड ऐसे करके भी है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हमें बोलना है कि क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे पता लगाए? देख लो, पहले बात कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास साइक्लिक है, ऑप्ट कर रहा है इस कंडीशन को। उसके बाद यहाँ पे हम कंजुगेशन देख लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको ये कंडीशन पहले ही बोल दिया कि ये भी जो है कंजुगेशन में जाता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड देखते हैं, प्लानर में देख लेते हैं। अब ये कार्बोकैटायन, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर वगैरह कुछ बवाल है नहीं, सीधे यहाँ पे भी देख लो, ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और यहाँ पे भी sp2, और ये भी है sp2, और ये भी है sp2। दैट मींस प्लानरिटी भी है। अब हकिल्स रूल को देख लेते हैं, क्या उसको ओबे कर रहा है। अब देखो 1 2, अब देखो वहाँ पे लोन पेयर था तो हमने उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया, पर ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास रहेंगे वो 2 है, और 2 जो है हकिल्स रूल में आ जाता है। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। सॉरी सर, ये सर हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब देखो और एग्जांपल हम लेके आए। अब हमारे पास ऐसे कंडीशन बन रहा है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देख लेंगे पहले साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक तो होगा। अब यहाँ पे देख लो, उसके बाद कंजुगेशन है, हाँ, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई। तो कंजुगेशन भी यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहा है, दिस इज कंजुगेशन, कंडीशन भी ये ओके कर रहा है। अब थर्ड यहाँ पे देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर। हाँ, अब देखो यहाँ पे 1 2, और ये लोन पेयर भी काउंट होगा, दैट मींस sp2 sp2 sp2। सम यहाँ पे 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन जो है तो ये प्लेनर होगा, ये प्लेनर होगा, प्लेनर भी होगा। अब हकिल्स रूल देख लेते हैं, हकिल्स रूल को ये ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे क्या देखें, अभी मैंने बोल दिया है कि ये जो लोन पेयर है बेसिकली अगर हम इसको कंजुगेशन में लगा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 2 और हाइड्रोजन 1 3 हुआ सम पर, ये